I'll just say whatever doubts you have. So whatever doubts you guys have, put it in the chat and address it to Ishkaran. He'll handle it for you. If not, he'll let me know and I'll answer them in the session itself. So we're going to be doing deep learning today. So first, a little bit about me. So I'm Tanuv Singh Bajaj. I'm from IIIT Bhopal. I'm currently doing a research internship at the University of Toronto and University of British Columbia. I'm working with natural language processing and graph neural networks. And So your voice is not coming. Yes, sir. All right, guys, give him a minute for some time. I'm Tanav, and today we will be discussing deep learning for image processing. So first, I'll talk a little about myself. So I'm a final year student at IIIT Bhopal. I'm doing a research intern at the University of Toronto, where I work with natural language processing. And I'm also an intern at the University of British Columbia, where I work with image processing and graph neural networks. And I've spent 1 year with IIIT Delhi, where I worked on statistical and graph-based models. I've been an intern at HackerEarth as well. And like most of the team here, I'm also a Kaggle expert. You can visit my website for more. So today we'll be just starting with what is deep learning, the basics, what's neural networks. Then we'll go with what is forward propagation, backward propagation. Discuss what all you need to know before you start training your first neural net. Then we'll go on the steps for deep learning. Then I'll give you a basic model, and then we'll also go with convolutional neural networks, then the UNet and ResNet architecture. So for today's resources, you can just visit this link. Let me just show you one second. So I've created a page on my website for sharing the resources with you. So this book called Fundamentals of Deep Learning by O'Reilly. It's an amazing book. You can refer to it if you want to go into a lot of depth. The Deep Learning Specialization by Andrew Ng is a course on Coursera. You can audit it, get financial aid, or if you want to pay for it, that's up to you. Then these are all the other resources. At the end, also I've shared some YouTube channel playlist as well. And this is one website called the Anomial, which gives you one question per day related to machine learning or deep learning. And you can answer the question, and they also give you an explanation, and you can then go forward with it and understand. They also provide you with the resources of what the question was, other things. So my target for today is that at the end of the day, you'll be able to create your own CNN based model and train it on the data set of your choice. So let's start. What is deep learning? Like, does anyone want to, tell me what do you think is deep learning? You can just unmute your mic and let me know. Anybody? Like, what's deep learning, or why do we use deep learning in today's world? All right, I'll just move on if there's no answer. So deep learning is a method where you extract features directly from the data. Like in machine learning models, what you have to do is you have to describe the features. Like if you go for stock prediction, you need to tell it, okay, this is the column for opening price, this closing price, and so on. For other regression and classification models, you need to give them each and every feature, and then it gets trained. Here, the feature extraction is done from the data. There's pattern recognition going on at every step. So the deep learning model or our neural networks, they recognize the pattern in the data and then classify accordingly. So what is a neural net? A neural net is an algorithm where there's an input layer
and a few hidden layers and an output layer. This simulates kind of like how our brain works. If we can look at an image of a dog, we know that it's a dog or a cat. Then we can classify them very easily. So these they adapt and they redesign themselves. They get the patterns from the data and then give it to us and classify us and do whatever we needed to do. There are several types of hidden layers that are present in the data. When I show you the model architecture and how to train your model, you'll be using most of these layers out there. So in the neural network, there's this thing called a dense layer. It's a fully connected layer in which we specify the number of neurons that we want and we give the data from it. There is there's a thing called activation function that adds to the non-linearity of the data as well. Then there's the flattened layer. What this layer does is, as you have seen yesterday in Ishkaran's presentation, and the image data was something like 224, 224, 3, etc. So these are a three-dimensional array. We convert it into a one-dimensional array that is suitable for going into a fully connected neural network. Then this batch normalization. This normalizes the activations of the previous layer such that they remain between a certain range, and it like improves the stability of our network. It converges our network because if values are from minus infinity to infinity, then it's a spread out in the embedding space. If we reduce it, if we normalize it, then we can work with it more easily, much better. It's computationally also more efficient. The dropout layer. So I guess most of you who studied machine learning have heard of this term called overfitting. So what happens in overfitting is, in cases of traditional machine learning, what happens in overfitting is that it gets so good on the training data that it forgets about the testing data and is not generalized. Like no addition, it won't give us a good accuracy if we provide data except the training data. To prevent that, the dropout layer randomly uh, you know deactivates certain neurons. It makes it zero during its training time, so that when we retrain or re-add the weights again, then it can be trained better and more generalized manner. There's this max pooling layer. Yesterday you might have seen that during the blurring part of the presentation, each current showed about how a kernel was moving on top of an image. So in max pooling layer, a kernel of a size that we define, it moves and takes the maximum value of that particular region and retains it. It reduces the dimensions of the image and retains the important features that we need. So now I'll talk a little about what's forward propagation. So I told you these are several layers inside a neural network. So from layer 1 to layer 2, when we move, if from layer 0, the input layer, to the output layer when we go, that's called forward propagation. This works in a way where like each neuron has a weight attached to it. This weight gets modified, can be like a number like 0 or 1 or something in between. It shows how important that neuron is for that particular segment, for that particular data set. So that weight gets activated, and there's this thing called bias. It just moves the offset of the data, and from there we can like the bias is added to the weights. The weight is multiplied by the features, and that's added to the bias. So it's kind of like linear algebra that you've studied. So this way we move through all the layers, and the layers that perform specific functions also change their weights accordingly. And this is how the training of a neural network works. It moves from the input layer to the output layer. It's These are the linear equations that are happening here, and we use the activation functions. I'll talk about them later as well to add to the non-linearity as well. Next is back propagation. This is something that's probably the best thing about a neural network. So in forward propagation, we've modified the weights based on the data to help get the features out. But in back propagation, we see a difference between the trained label, the labels that our uh, model is providing and the labels that are needed. So that to reduce the difference as much as possible, we go with back propagation. That there's a loss function that we need to reduce using the optimizers. So loss function and optimizers might be new terms for you, and we'll be discussing them later in this presentation as well. So we use the optimizer to reduce the loss function, go from the output layer to the input layer, and modify the weights accordingly. We keep
repeating the process of forward and backward propagation multiple times until our weights are finalized. When our weights are finalized, we get the model accuracy. That's how the training of a model works in general. So now talking about the terminologies that you need to know before we start training our deep learning model. The first thing is weights and biases. So like I showed you in forward propagation, each neuron has its own weight that is multiplied to the data and sent to the next layer. Weights, they determine the strength of that neuron. Bias, it provides an offset to the neuron's activation. These are the learnable parameters, that's adjusted during the training process. They help improve our model. There, I'll also talk about, like, I've used the term parameters here. I'll talk about parameters and what are hyperparameters. They're two different things in one of the future slides as well. So activation functions. So these are functions that provide non-linearity to the neural network. They transform the input to generate the output. So if I give you an image and we want an output of whether it's a cat or a dog, we don't get to know that just by sending the same thing in. So we change the linearity, and when we change the linearity, it changes these functions. For example, sigmoid is used for mostly binary classification problem. We use softmax for the multi-class classification problems. Things like ReLU and leaky ReLU, they're used in every single layer to add to the non-linearity and just to help us make the best model possible. Loss function. So these loss functions, they help us get what is the error between the predicted and actual value in a neural network. With the difference, so for example, mean squared error. So the difference between the two values and squared sum, the sum of their squares. That's called the mean squared error. Then there's the cross entropy and softmax cross entropy. I'll also be showing you various other categorical cross entropy, the sparse cross entropy as well. So I'll be talking about the loss function as well. So this thing called learning rate. So learning rate is used to modify the optimizers. At what speed we'll change our loss function to reduce it the maximum possible. Our target is to reach at the minimum. If you see where my mouse is pointing at. Now, if we use a very low learning rate, what happens is that it is very slow to train, first of all, and then secondly, it might take like hours or days of computation and not even reach the minimum. If we set it too high, then it's the problem that it might not even just be able to find the minima. It just goes from like one point to another, just keeps bouncing on looking for the minima. It won't reach there. So our aim would be to find the just right learning rate, which swiftly reaches at the minimum point. So I've discussed terms like loss function and learning rate. You can go more into depth using the resources that I've shared. Next is optimizers. I talked about this in the loss function as well. These are the algorithm, those are used to update the weights and biases of the neural network, at every step. So during the back propagation that we saw, they help us minimize the loss function and improve models performance. So these are some popular gradient descent, like popular optimizers like gradient descent, Adam, and RMS prop. If you notice in this image, just look at the image. It's kind of like a saddle of a horse. When you sit on the horse, the thing that's lying below. In such cases, at times the optimizer, it goes off rails. If you can see, the ADA delta and the RMS prop, they're just falling off. So this is not an ideal condition. The ideal condition is to reach where this red point has reached, the stochastic gradient descent model optimizer reached. So you have to choose the best optimizer possible to reach there. And in general, Adam is the best optimizer that works 90% of the times. And I talked about the term called parameters. The parameters such as weights and biases are variables that are parameters. And then there's thing called hyperparameters. These are the values that we set beforehand, like what's the learning rate, what is the optimizer, the number of hidden layers, what is the batch size, number of epochs, and those kind of things. So the way we choose the hyperparameter, it's some of it is your experience, and most of it is trial and error. There are a few methods that you can use in the code to optimize this, but more, I think it's your own experience that tells you what to use and how much to use most of the times. Next is epoch
batches, and iterations. Epoch, it represents like one complete pass of the entire training data set on the neural network. So forward plus backward propagation once is one epoch. It sets all the weights and the biases, and they're updated based on the error during back propagation. And we have a number of epochs. We just don't train our model once. The training data set goes through multiple times to extract the best possible features. And the training data set, since these are images can be very, very large. So we oftentimes divide them into smaller subsets called batches. And the batches are sent sequentially during each epoch, which makes training more manageable. It reduces the memory. That's why we are able to train such models on Kaggle or Google Colab, and at times even our local systems. Iterations, it's the number of times the optimizer updates the weights and biases in one epoch. It corresponds to the number of epochs itself. It contributes to refining the model's parameters and bringing it closer to the point. So in loss, the convergence happens, and it improves the performance. So these numbers that are usually decided, based on some trial and error. Some of it's based on our experience, and some based on the. It's part of it is based on some things we can add like callbacks in the code. Now we'll talk about like what are the types of machine and deep learning models. So there's supervised machine and deep learning models. So the supervised models, they have labeled data. The data is labeled. Like if I know the data that is an image of a cat or an image of a dog, it's labeled. The next kind is unsupervised machine learning models. These are unlabeled data. Like tomorrow we'll be working with GANs. Are totally unsupervised models. Next is reinforcement learning. Reinforcement learning is another model that interacts with the environment in the production system, and it helps us improve our current model. It is a layer on top of a model that improves the current model, whatever our AI agent, if we call it, it's AI agent and the environment, and the reinforcement learning happens on top of it, connecting both of them. This can be seen in cases of self-driving cars and even gaming, how to improve the best performance of these devices. So what are the Sir, traditional steps? Yeah. I have a question. What is the meaning of no predefined data? Can you just repeat what you said? Like in this slide, reinforcement machine learning, the type of data is no predefined data. What do you mean What by type that? of? What type of? Can you repeat that? I can get you. In reinforcement Reinforcement machine learning, learning. Mm-hmm. there is a thing called no predefined data in type of data section. Correct. So there's no predefined data because uh, the part of reinforcement learning, what happens is whatever we get from the user, that the user feedback. So if you've tried chat gpt, I think आप सबने यूज करा होगा. तो इन चैट जीपीटी कई बार आप रीजनरेट रिस्पॉन्स दबाते हो तो वो पूछता है आपसे कि क्या ये रिस्पॉन्स बेटर था या बेकार था पहले वाले से. वो फीडबैक लेता है. तो फीडबैक के बेसिस पे आपके मॉडल डिसाइड करता है कि आपके मॉडल जो करंट जीपीटी का मॉडल है उसको पीनलाइज करना है, उसको अटैक करना है, उसको बोलना है कि ये वाला चीज अच्छी नहीं करी तूने, या उसको बोलना है कि दिस वाज वेरी गुड एंड कीप डूइंग थिंग्स लाइक दिस. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो मॉडल होता है उसका बेसिकली यही काम होता है, यूजर फीडबैक को लेकर या यूजर के इंटरेक्शंस को यूज करके मॉडल को ट्रेन करना, मॉडल को इम्प्रूव करना. ये पार्ट होता है रीइंफोर्स. जब आपके लिए एक कार चल रही होती है तो टेस्ला का जैसे ऑटो पायलट हो गया, जब वो जा रहा है तो उसने अगर देख लिया कि एक रोड पे कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे उसने रुकना है या स्लो डाउन करना है. तो पहली बार तो वो नॉर्मल स्पीड पे कई बार जा सकता है, बट इवेंचुअली उसको जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग से इम्प्रूव करा, उसको फीडबैक मिला, जब उसने वो फील करा कि अच्छा सेंसर से फील करा कि यहाँ पे इशू है, हमको यहाँ पे स्लो करना है, तो वो अपने आप स्लो होगी उस एरिया में. तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे कैसे आप मॉडल को, जो अपना फिक्स्ड मॉडल ट्रेंड मॉडल को इम्प्रूव करने का प्रोसेस होता है. तो वो एक एक्सटर्नल लेयर होती है. आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा. Yes. Sounds good. और किसी को भी पूछना है, pause for 1 second. You can ask your doubts. Let's discuss. Anyone? Okay, I'll assume your silence as I'm teaching very well. So I'll move forward. So, okay, the steps of a deep learning model.
मेरे को एक चीज आप लोग बताओ, लाइक डू यू प्रेफर हिंदी और इंग्लिश में, किस में कंटिन्यू करूं? ऐसे हिंदी। माइक अनम्यूट कर हिंदी। चलो ठीक है, हिंदी में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब डीप लर्निंग मॉडल को के स्टेप्स आई विल एक्सप्लेन। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कि क्या डेटा हमारा है, उसको फिर अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर डेटा एनालिसिस करते हैं कि थोड़ा स्टडी करते हैं कि किस टाइप का डेटा है हमारा। भी कई बार डेटा में इम्बैलेंस होता है, उसको कैसे डील करना है वो अलग चीज़ होती है, उसको बैलेंस क्रिएट करना होता है, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। स्टेप टू होता है उसको प्री प्रोसेस करना। अब मेरे पास ढेर सारी इमेज, लाइक 50,000 इमेजेस हैं, अब सबका डिफरेंट साइज है, मैंने न्यूरल नेटवर्क के अंदर भेजना है तो मुझे उन्हें रीसाइज करना पड़ेगा। अब रीसाइज करने के लिए क्या यूज़ करें, कल जैसे सिखाया था उसने ईश्वरन ने कि रीसाइज कर सकते हैं उस टाइप की चीज़ें। तो उसको प्री प्रोसेस करना, उनके सारी वैल्यूज को ग्रे स्केल करना है, मुझे RGB टू ग्रे स्केल करना है कई बारी। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसको अलग अलग तरीके से हम प्री प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने मॉडल डिफाइन करा तो मॉडल को फिर ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग द मॉडल होता है। तो ट्रेन होता है जैसे ईपॉक्स के थ्रू मैंने आपको बताया था, मॉडल बार बार डेटा पर ट्रेनिंग डेटा उसी के वेट्स एंड बायसेस को अपडेट कर रहा होता है। फिर हम उसकी एक्यूरेसी देखते हैं और उसको एवेलुएट करते हैं कि ये टेस्टिंग डेटा पे कैसे काम कर रहा है। टेस्ट अगर ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा काम कर गया बट टेस्टिंग डेटा पे नहीं करा, तो मॉडल को कैसे इंप्रूव करना है, क्या उसके अंदर कॉल बैक्स डालने, कहाँ उसको स्टॉप करना है, इस टाइप के फिर उसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना हमारा पर्पस बन जाता है। दीज आर द बेसिक स्टेप्स। अगर आप कभी भी डीप लर्निंग मॉडल बनाते हो तो ये स्टेप्स आप फॉलो करते हो। डीप लर्निंग इज नॉट अंडर वाटर जाके पढ़ना जैसे मीम्स में दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप है आपका एक लाइक बेसिक इमेज क्लासिफिकेशन का है। आई जस्ट वांट कि सारे इस नोटबुक पे चले जाओ एंड यहाँ पे एडिट करके आप लोग रन भी कर सकते हो। ये कैगल नोटबुक है, बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग। If you want me to zoom in more or something, just let me know. So in this notebook, what I'll be showing you is like how a very simple model can be used for classification, and it also shows the importance की मॉडल आर्किटेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक नॉर्मल बेसिक मॉडल लगेगा, एक CNN का मॉडल होगा। CNN मॉडल अभी एक्सप्लेन, वो नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन होगा, अभी नहीं। तो दोनों मॉडल्स आपको मैं दिखाऊंगा कैसे मॉडल आर्किटेक्चर से कितना डिफरेंस आ सकता है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बस लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है। नेक्स्ट हमने ये सिफर 10 का डेटा सेट होता है, इसमें इस टाइप की इमेजेस होती हैं, ये जो आपको दिख रही है अभी इस टाइप की इमेजेस है इसमें। और इनके बेसिस पे हम लोग ये 10 अलग अलग कैटेगरीज की इमेजेस, यहाँ पे ट्रक है, ऑटोमोबाइल है, पीकॉक है, हॉर्स है, बर्ड्स है, इस टाइप की फ्रॉग है बीच में। तो इस टाइप की इमेजेस हैं इसके अंदर और इसको हम लोग यूज़ करेंगे एज इनपुट डेटा। ये 10 क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो इसको प्री प्रोसेस कर दिया हमने यहाँ पे, इसकी पिक्सल वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर दिया, फ्लैटन कर दिया हमने, क्योंकि मेरे को यूजुअली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वगैरह भी करना पड़ता है, बट बिकॉज ये टेंसरफ्लो का इनबिल्ट डेटा सेट है, ये मेरे को ऑलरेडी स्प्लिट मिला था। तो अगर आप इसकी शेप देखना चाहें, ये 50,000 इमेजेस का आ रहा है यहाँ पे, ऐसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो रखा है हमारा। फिर हम मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं, ये पार्ट है जो आज हमारा थिंक मेन पार्ट है। तो हमने फर्स्ट लेयर वो फ्लैटनिंग वाली डाली है। इनपुट शेप मॉडल की 32,32,3 आ रही है, जो इमेज की है उसको हम फ्लैटन कर रहे हैं। फिर उसको डेंस लेयर में डाल रहे हैं। फर्स्ट डेंस लेयर में 256 न्यूरॉन्स हैं, तो 256 वेट्स भी जनरेट होंगे। उसमें रेलो एक्टिवेशन फंक्शन, रेलो जो दिखाया था मैंने फंक्शन पीछे एक्टिवेशन वाला, वो यूज़ कर रहे हैं नॉन लिनियरिटी ऐड करने के लिए। अब कोड में इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बट जब आप इसको असली में अगर देखोगे तो फर्स्ट स्टेप विल बी कि आपकी जो डेंस लेयर है उसके थ्रू पास करा, उसके वेट्स अपडेट हुए, जो फुली कनेक्टेड डेंस लेयर होती है, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन लगता है। इट्स द नेक्स्ट स्टेप, बट कोड में वो एक ही लाइन में आ जाता है। तो फिर नेक्स्ट 120 है, देन 64, लास्ट इज द 10 न्यूरॉन्स। तो ये 10 क्लासेस में अपने आप फिर वो सॉर्ट हो जाता है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज। ये सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो होता है वो प्रोबेबिलिटी जनरेट करता है कि कौन सा इमेज जो है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, वो कौन से न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगी लास्ट में। तो उससे हम 10 क्लासेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें जो ऑप्टिमाइजर बताया था मैंने आप लोगों को, ऑप्टिमाइजर हम लोग यहाँ पे एडम यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करेंगे। स्पार्स वर्ड इसलिए बिकॉज हमारा जो डेटा है वो वन हॉट एनकोडेड, जो लेबल्स हैं वन हॉट एनकोडेड नहीं है। और वन हॉट एनकोडेड होते तो वो दूसरा यहाँ पे लॉस यूज फंक्शन यूज होता है। तो वहाँ पे हमारे पास स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लग रही है। वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है, जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है आपका, जो ट्रेनिंग लेबल्स होते हैं आपके, जैसे 1 2 3 4 मैं कहता हूँ, अगर मैंने
कैट डॉग या ऑटोमोबाइल जो भी मेरे पास लेबल्स थे, उनको अब मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। इसमें इसकी 1 2 3 4 5 6 के फॉर्मेट में वो कन्वर्टेड हो गए। बट उसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने एक जो 10 डायमेंशंस का एक वेक्टर डिसाइड कर लिया। तो अगर वेक्टर की पोजीशन नंबर 1 है, लाइक 1 फिर 9 जीरोस, मतलब वो फर्स्ट वाली कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन है। फिर 0 फिर 1 फिर 8 जीरो वो सेकंड वाली कैटेगरी का, सो ऑन, दैट्स वन हॉट एन्कोडिंग। तो वन हॉट एन्कोडेड होता है, तो देन अ डिफरेंट लॉस फंक्शन इज यूज्ड। देन मैट्रिक्स में हम लोग एक्यूरेसी के बेसिस पे चल रहे हैं, तो कई मॉडल जैसे जो हमारे प्रिडिक्शन मॉडल्स होते हैं, उसमें आपको रूट मीन स्क्वायर एरर वगैरह भी चेक करना होता है, तो वो वहाँ पे हम अलग मैट्रिक्स यूज करते हैं। एक बार आप मॉडल आर्किटेक्चर देख लीजिए। And हाँ, ये सीक्वेंशियल वर्ड का भी मैंने बताना था आपको। दिस इज सीक्वेंशियल मॉडल। इसका मतलब होता है कि ये ना लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 ये एक के बाद एक चलेंगे। उसका मतलब होता है सीक्वेंशियल। कई आप पैरेलली प्रोसेस भी कर सकते हो, बट हम लोग जो मॉडल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे दोज आर मोस्टली सीक्वेंशियल होंगे। नेक्स्ट अब मैंने इसका वही ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा उसको फीड कर दिया फॉर अबाउट 25 epochs एंड वो चल गया। तो यहाँ पे हमारे को 25 epochs के अंदर 56% की हॉरिबल से एक्यूरेसी है। इट्स अ वेरी बेसिक मॉडल, तो इस टाइप की एक्यूरेसी आ गई। तब इसके इस टाइप के कर्व्स डिसाइड कर सकते हो कि ये हमारा रेड वाला है, तो दैट्स द ट्रेनिंग डेटा सेट की एक्यूरेसी। द ग्रीन वन वैलिडेशन एक्यूरेसी है। यहाँ पे वैलिडेशन एक्यूरेसी यहाँ पे 50% थी कि जो अनसीन डेटा होता है उस पर अभी 50% की तरह काम करता है। एक्यूरेसी 56%। अब यही मैं इसका आप रन कर लो, साथ में आपका 3 मिनट्स के आसपास रन करेगा अगर आपने जीपीयू एनेबल करा है तो। जीपीयू आपको बॉटम राइट में नोटबुक ऑप्शंस में मिल जाएगा। नोटबुक ऑप्शन में जीपीयू एनेबल मत भूलना, बिकॉज डीप लर्निंग मॉडल्स आर मच फास्टर ऑन जीपीयू। सीपीयू में दे यूजुअली डोंट रन दैट वेल। तो हमने टेस्टिंग एक्यूरेसी भी इसकी देखी, दैट वाज आल्सो barely 49%। अब लेट्स गो इन फॉर अ सीएनएन बेस्ड आर्किटेक्चर जो मैंने डिजाइन करा। उसमें काफी सारी आप देख रहे हो लेयर्स हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर भी लगी है एंड उसके अंदर हमारी कॉन्वोल्यूशन लेयर्स लगी हुई हैं। कॉन्वोल्यूशन लेयर्स में आपको अगली उसमें समझाऊंगा। इसमें ड्रॉप आउट भी लगा है टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग ना हो ना, इस टाइप से हमने सब कुछ लगा रखा है इसमें। तो हमारी 10 क्लासेस के लिए ये बना रखा है मॉडल। जो मॉडल एक बार देख सकते हो, इसको भी हमने वही सेम मॉडल डॉट कंपाइल यूज करा है इसमें। इसको कंपाइल करते हैं हम लोग। अब कॉल बैक्स मैंने आपको बताया था, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो बताया था मैंने आपको, तो वो हम लोग लाइक वैसे तो मेजरली हमें खुद से हाइपर पैरामीटर्स डिफाइन करने थे, बट कॉल बैक्स हेल्प अ लॉट आउट है। यहाँ पे एक अर्ली स्टॉपिंग होता है कि हमने 5 इटरेशंस पे वैलिडेशन लॉस जो है वो चेक कर लिया। अगर वो सेम रह रहा है या सिमिलर सा रह रहा है तो हम उसको स्टॉप कर दें मॉडल को, और जो भी हमारे बेस्ट वेट्स थे उस टाइम पे उस पे उसको स्टोर कर लें। या मॉडल हमारा जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट वेट्स जो वैलिडेशन लॉस को देख के आ रहा है। अब रिड्यूस एलआर ऑन प्लेट्यू। तो गलती से कई बार क्या हो जाता है, हमारा लर्निंग रेट जो हमने डिसाइड करा हो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने इस इमेज में दिखाया था ये वाला। तो अगर टू हाई होता है ना, उसको जस्ट राइट तक लेके जाने के लिए हम रिड्यूस एलआर ऑन प्लेट्यू यूज करते हैं। ये रिड्यूस एलआर ऑन प्लेट्यू भी वैल्यू लॉस को मॉनिटर कर रहा होता है और हमारे फैक्टर ऑफ 0.1 से लर्निंग रेट को रिड्यूस कर देता है अगर 5 उसमें वैल्यू लॉस सेम चले। एंड वो मिनिमम इतने तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा लर्निंग रेट, वो हमारे को डिफाइन करना पड़ता है। इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, कि उससे ज़्यादा नीचे चला गया तो पता नहीं कितने पहुंचे भी ना पहुंचे वहाँ तक, वो इन्फिनिटली लो ना हो जाए। इस मॉडल को जब हमने ट्रेन करा, अगर आप इसकी एक्यूरेसी देखोगे इट वाज अबाउट 93%। आप इतना डिफरेंस देख सकते हो, लाइक फ्रॉम 56 वी केम टू 93%। एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी भी इसकी 81% तक आ गई थी। इस टाइप के ग्राफ्स, दीज आर डिसेंट ग्राफ्स जो जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे फॉर 10 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, एंड द टेस्ट एक्यूरेसी इज अबाउट 81%। then we go in for checking out कि क्या है हमारा कैटेगरी। एक हमने इमेज पे टेस्ट करके देखा, ये वाली इमेज हम लाइक मेक आउट कर सकते हैं कि हाँ ये कार खड़ी हुई है अंदर। तो हमारा जो लेबल था जो हमारे को डेटा सेट से प्रोवाइड हुआ दैट वाज ऑटोमोबाइल, और जो हमने प्रिडिक्ट करा वो भी ऑटोमोबाइल। तो आर द करंट मॉडल इट वर्क्स। नेक्स्ट स्लाइड इज हम लोग CNN की नोटबुक पे चले जाओ। आई थिंक ओके। तो मेरे को इस करके ओवरफिटिंग का बच्चों को डाउट आ रहा है। तो व्हाट ओवरफिटिंग डज इज, ओवरफिटिंग एक ऐसी चीज होती है कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा है ना उसको जो हमारे मॉडल ने एकदम अच्छे से समझ लिया। इट्स काइंड ऑफ लाइक आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपने मैथ्स की अपनी बुक पकड़ी, उसमें जितनी प्रॉब्लम्स है बिना समझे याद कर ली।
अगर और आपके एग्जाम में कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। तो मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा याद कर लिया, एंड जब हम लोग उसको कोई टेस्टिंग डेटा जो बाहर से एक्सटर्नल डेटा है जो डेटा पे वो ट्रेन नहीं हुआ वो प्रोवाइड करा, उसमें उसने बहुत बेकार परफॉर्म करा। दैट्स कॉल्ड ओवरफिट। इसको अवॉइड करने के लिए हमने जैसे ड्रॉप आउट लेयर ऐड करी थी। इस टाइप के और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं जो ओवरफिटिंग को रिड्यूस करता है, अवॉइड करता है। And और भी कोई डाउट है, फील फ्री टू टेक्स्ट ईच करण इन द चैट और लेट मी नो, अनम्यूट योरसेल्फ। एंड आई थिंक इट्स इनफ टाइम, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एंड जो ब्रेक के बाद we'll continue with convolutional neural networks. Then I'll talk about the ResNet model, the UNet model, and we'll be moving forward with that. तो अपनी एक जो ResNet वाली नोटबुक, CNN वाली नोटबुक, फ्रॉम द रिसोर्सेज कीप इट ओपन, एक को लैब नोटबुक भी शेयर की भी होगी रिसोर्सेज में, उसको भी ओपन कर लेना, वो आपको यूनेट वाली नोटबुक है। लेट्स टेक अ ब्रेक। पानी मिल सकता है? और आई थिंक ये CNN वाली नोटबुक सबने खोल ली होगी। तो अब लेट्स विल बी डिस्कसिंग CNN। तो CNN के जो होते हैं, ये भी क्लासिफिकेशन करने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क हम लोग ने क्रिएट किया, और बेसिकली कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है इसमें, वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है हमारी। यहाँ पे देख रहे हो फीचर एक्सट्रैक्शन कर रही है वो। जो हमारी ये तो क्लासिफिकेशन है वो तो सेम, लास्ट की लेयर्स जो लगती हैं, आउटपुट लेयर और फुली कनेक्टेड लेयर, वो तो सिमिलर होगा। बट जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर और पूलिंग लेयर है ना, ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन करती है वो बहुत अच्छा करती है। तो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं दो कैटेगरीज के बीच में, वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर लगती है हमारी। कॉन्वोल्यूशनल लेयर काम कैसे करती है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर में हम लोग एक कर्नल डिफाइन करते हैं। जो कर्नल ये काइंड ऑफ वेट्स की तरह चलता है। तो क्या करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 1 into 1, यहाँ पे आप देखोगे 1 into 1, यहाँ पे 1 आ गया, फिर नेक्स्ट उसमें 0 आ गया। तो इन सब का ये इस टाइप से वो सम लेके 4 बन गया। तो ये जो कर्नल वैल्यू देगा वो यहाँ पे आ जाती होती है, हमारे जो फीचर्स की तरह बाहर आ जाती है, कॉन्वोल्यूटेड फीचर बन जाता है ये। तो हर इमेज का अलग फीचर बनता है। उस टाइप से जो ट्रेनिंग डेटा सेट से फीचर्स क्रिएट करते हैं, उनसे हमारी वो ये वेट मैट्रिक्स और कर्नल इसमें ऐड होता है, फिल्टर मूव करता है पूरा इसके ऊपर। तो ये हमारे को जो इम्पोर्टेंट, जैसे आप कैट अगर देख रहे हो तो उसकी क्या शेप आती है काइंड ऑफ, या उसके लाइक क्या क्या डिफरेंस, अगर मैं कैट डॉग डिफरेंशिएशन करने हैं तो क्या क्या छोटे छोटे डिफरेंसेस जो उसको दिखते हैं उसके अंदर ना, वो ऐसे प्रोमिनेंटली एक्सट्रैक्ट होते हैं। पूलिंग ले मैं जो मैक्स पूलिंग समझाया था आपको, अब आप उसको थोड़ा बेटर तरीके से देखो। जो कर्नल होता है वो इसमें ऐसे जैसे आप देख रहे हो विजुअलाइजेशन में, हमारा 3x3 का कर्नल है, वो ऐसे चल रहा है पूरी इमेज के ऊपर, और वो इमेज के अंदर से उनका मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है बस। अब कई बच्चे सोचोगे मैक्सिमम निकालने के चक्कर में इन्फॉर्मेशन वेस्ट भी तो हो रही है। इन्फॉर्मेशन वेस्ट नहीं हो रही, जो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं इससे, क्योंकि हमारे को हमारा टारगेट इज क्लासिफाई करना। तो जो हमारा बैकग्राउंड है या जो साइड पर दोनों एनिमल्स की बॉल पड़ी है, कुछ पड़ा है, वो हमारे यूज का नहीं। तो उस चक्कर में जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वो है इमेज है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है मैक्सिमम वाली वैल्यू उठाने से। अब यहाँ पे आप देखोगे फिल्टर है, इमेज साइज ऐसा बने कि फिल्टर इमेज से बाहर जा रहा हो, तो हम उसमें पैड कर देते होते हैं। पैडिंग ऐसी करते हैं, वो जीरोस की पैडिंग हो जाती है यूजुअली, तो पैडिंग लेयर ऐड हो जाती है टू मेक श्योर, या रिसाइज कर देते हैं इमेज को, मेक श्योर कि हमारा फिल्टर सही से चल जाए उसके ऊपर। अगर आप कभी कोई फिल्टर डिक्लेयर कर दोगे जो इमेज साइज से बड़ा हो, तो फिर वो एरर भी दे देता होता है। यहाँ पे आज हमने जब सुबह करा था तो किसी के आउटपुट लेयर का इमेज साइज आ रहा था 1x1, उसने 2x2 का फिल्टर डिक्लेयर किया हुआ था नेक्स्ट उसमें, तो वो एरर आया था, तो वो भी हमने रिजॉल्व करा था जस्ट फिल्टर साइज चेंज कर। अब आउटपुट लेयर आप लोगों को पता है जो फाइनल लेयर होती है जिसमें प्रोबेबिलिटीज आती है, जो हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। अब इस वाली नोटबुक के लिए मैं एक फैशन एमनिस्ट का डेटा सेट ले रहा हूँ। फैशन एमनिस्ट इज बेसिकली ढेर सारी जैसे टी शर्ट, टॉप, ट्राउजर, पुलोवर, इस टाइप की कैटेगरीज हैं। 10 कैटेगरीज है टोटल। ये 10 कैटेगरीज की हमारे पास इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स पड़ी हैं इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा डेटा सेट है ये। अब एक 3D विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ था जो इसके लिए, ये वो देख सकते हो एम्बेडिंग स्पेस में कैसे ये लोग रखे हैं। शूज एक कॉर्नर में क्लस्टर हो रखे हैं, हील्स एक कॉर्नर में है, बैग्स एक जगह है, सारे पुल वो टी शर्ट स्वेटर्स एक साइड में है, उस टाइप से जिनके सिमिलर फीचर्स हैं वो भी क्लोजर है अगर आप नोट करना है यहाँ पे।
इस इमेज को जब थोड़ा स्लो होता है यहाँ पे शूज और हील्स एक साथ हैं जो अभी आएगा, तो यहाँ पे स्वेटर्स और टी शर्ट्स एक साथ हैं उस टाइप का। तो हमने पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, तो लाइब्रेरीज इंपोर्ट का भी जैसे आप करते हैं, जैसे केरास एंड टेंसरफ्लो से हम लोग कर रहे हैं यूज़, तो फ्रॉम केरास उसके हम लोग ने मॉडल से सीक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट करा, जैसे आपको दिखाया था। फिर लेयर्स से हमारे मॉडल की लेयर्स के लिए हमने अभी कॉन्वोल्यूशनल लेयर, मैक्स पूलिंग लेयर, डेंस लेयर्स, फ्लैट एंड ड्रॉप आउट लेयर्स, ये सारी लेयर्स के बारे में बता चुका हूँ मैं, इनको करा हमने। एंड हमने ऑप्टिमाइजर्स में एटम को यूज़ कर रहे हैं। हमारी 10 क्लासेस हैं और हम 20 इपॉक्स में बड़ी हैवी बुक्स पे रन करेंगे इसको। तो अब डेटा सेट देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यूजुअली हमारे को इमेज में डेटा सेट होता है। ये फैशन एमनिस्ट वालों ने डेटा ऐसे प्रोवाइड किया है कि लेबल हमारे को पता है 1 2 3 4 के फॉर्मेट में कि कौन सी वाला देख 0 स्टैंड्स फॉर समथिंग, 1 फॉर समथिंग, उस टाइप से लेबल। और हमारे को पिक्सेल्स दे रखे हैं कि अगर आप देखो 784 पिक्सेल्स दे रखे हैं हमारे को। अब पिक्सेल्स को हम की वैल्यूज दे रखे हैं उसके अंदर क्या होंगी, अब उसको हम लोग यूज करते हैं। हमने उसको बस फ्लो 32 में कन्वर्ट करा एंड हमने उसको 0 से 255 के बीच में डाल दिया। सॉरी 0 से 255 वैल्यूज थी, उसको हमने 0 से 1 के बीच में नॉर्मलाइज कर दिया ताकि हम आराम से उसको प्री प्रोसेस करके आगे यूज कर सकें। तो हमारा ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा आ गया था, हमने वैलिडेट वाला डेटा जनरेट कर लिया जिस बाय स्प्लिटिंग अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। 20% ऑफ द ट्रेनिंग डेटा से हमने वैलिडेट बना लिया। अगर आप विजुअलाइजेशन देखो, यही पिक्सेल्स को हम अगर मैटप्लॉटलिब से विजुअलाइज करते हैं तो ऐसे बनती है हमारी इमेजेस। सैंडल ऐसी है, स्नीकर्स इस टाइप से है, बैग इस टाइप से है, एंड कोट वगैरह, कोट ऐसा है, पुलोवर ऐसा है, इस टाइप के अलग अलग हमारे पास कैटेगरीज पड़ी हुई हैं जो क्लासीफाई करेंगे। तो हमने इसको रीशेप करा टू मेक श्योर कि सारी हमारी इमेजेस सेम साइज की आ रही हैं। एंड रीशेप करने के बाद सारे उसको हमने मॉडल डिफाइन करने पे आ गए हम लोग। हमारी कौन 2D लेयर लग रही है, यहाँ पे आप देखो कौन 2D लेयर है, इसमें हम 32 फिल्टर्स चला रहे हैं। हर का कर्नल साइज 3 है, 3x3 का कर्नल साइज है, 32 फिल्टर्स चल रहे हैं इसके ऊपर से। और उसका एक्टिवेशन रेलो है, रेलो एक्टिवेशन के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। एंड जो इनपुट आएगा वो हमारी इमेज शेप के बराबर, इमेज शेप मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह डिक्लेयर कर दी है, तो उसको हम डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ जस्ट कि राइटिंग की क्या इनपुट आएगा, हम इमेज शेप की तरह उसको कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैक्स पूलिंग लेयर लगी है, आपको बताया था अभी पूलिंग लेयर के बारे में, जो मैक्सिमम उठाता है। ऐसी एवरेज वाली भी होती है पूलिंग लेयर, ऐसी अलग अलग टाइप की पूलिंग लेयर्स भी क्रिएट कर सकते हो, आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दैट्स ऑन यू। फिर हमने ड्रॉप आउट डाल दिया टू मेक श्योर कि ओवरफिट ना करे। ओवरफिटिंग मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, तो ओवरफिट ना करे तो हम 20% न्यूरॉन्स को रैंडमली डिसेबल कर देंगे। तो इस टाइप से वो लेयर ऐड होती है सीक्वेंशियल मॉडल के अंदर। फिर हम फ्लैटन कर रहे हैं 1D वेक्टर बनाने के लिए ताकि हम अपनी डेंस लेयर को दे सकें। अब डेंस लेयर विद 32 न्यूरॉन्स, उसको हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम डेंस लेयर में यूजली न्यूरॉन्स डालते हैं वो 2 की पावर n में डालते हैं, 2 की पावर 532, 256 इस टाइप से, तो क्योंकि वो कंप्यूटेशनली बेटर काम करता है। फिर लास्ट में मेरे को 10 क्लासेस थी, तो हमने 10 क्लासेस की डेंस लेयर विद सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन। सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन मेरे को क्लास की प्रोबेबिलिटीज बता देता है, तो वैसे यूज कर रहे हैं इसको। यहाँ पे भी स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगा है बिकॉज 1 2 3 4 के फॉर्म में नॉट वन हॉट एनकोडेड। एंड हमारा लर्निंग रेट हम जिससे स्टार्ट करें 0.0001 विद एन एक्यूरेसी मेट्रिक। एक बार मॉडल देख लो आप, कुछ पूछना है बिफोर वी स्टार्ट द ट्रेनिंग, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, वरना चैट में ईश्वरन को भेज देना, हम श्योर वो आंसर देते हैं। तो अब हमने मॉडल को ट्रेन करा, हमारा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन देने के बाद 4096 का बैच साइज लगा के, बस काफ़ी सारी इमेजेस थोड़ा बड़ा बैच साइज रख लिया हमने। एंड ये भी देखना, ये भी 2 की पावर n में ही होता है यूजुअली। 75 इपॉक्स के लिए मूव कर दिया इसको विद द वैलिडेशन डेटा। और हमारे इसमें n में एक्यूरेसी आ गई अराउंड 92% एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी अराउंड 90%। फॉर अ 10 क्लास क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट दिस डिसेंट, प्रीटी गुड। हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं कि हमारा मॉडल इज वर्किंग डिसेंटली वेल। तो इस टाइप के ग्राफ से तो लॉस को आपने मिनिमम करना होता है एंड एक्यूरेसी को मैक्सिमम। तो इस टाइप का ग्राफ जनरेट हुआ हमारा कि एक्यूरेसी इज क्लोजेस्ट टू 1 एंड लॉस इज गोइंग डाउन क्लोजर टू 0। टेस्ट एक्यूरेसी भी मेरे को 91 मिल गई टेस्टिंग डेटा सेट में, दैट्स आल्सो ऑलमोस्ट 91 है, दैट्स आल्सो प्रीटी गुड। अगर आप इसका विजुअलाइजेशन देखोगे तो ये देखो, जैसे हमने टेस्ट करा था तो प्रिडिक्शन क्लास, जो हमने क्लास प्रिडिक्ट करी 0, जो ओरिजिनल क्लास थी वो भी 0 इस केस में। अब यहाँ पे एक ही पुल ओवर का देखो, प्रिडिक्शन क्लास 6 है, ओरिजिनल क्लास 2, मतलब
ये या तो टी शर्ट है या पुलोवर है, हम लोग ऐसे इतनी हेजी से इमेज से भी श्योर नहीं हो पाए, तो हमारा मॉडल भी श्योर नहीं हो पा रहा था। तभी मतलब ये 90% ही एक्यूरेट है, 10% में इसके पास फ्लॉज भी हैं। तो ये नोटबुक अभी कंप्लीट हो गई है। अब CNN के आर्किटेक्चर में किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। देन वील मूव ऑन टू रेजनेट, बिकॉज रेजनेट एंड यूनेट इन मॉडल्स के अंदर भी कॉन्वोल्यूशन लेयर्स लगती हैं। ऑलराइट, आई एम गेसिंग कोई डाउट नहीं है या चैट में पूछ लिया होगा। तो आप लोग ने एक बार वो नोटबुक रन करके देख लिया है CNN वाली? उससे आप रन करके एक बार इसको देख लो सही से, एंड आई थिंक 2-4 मिनट ही लगेंगे। रन करो, चेक करो कि कैसे चल रही है, कैसे ट्रेनिंग हो रही है उस टाइप से। एक बार रन हो जाए तो जस्ट समवन लाइक से कि हो गया रन टाइप्स, unmute your mic and then I'll continue. I'll give you like 2-3 minutes for this. And 3:40 पे हम I'll continue, वरना अगर जल्दी रन हो जाता है तो let me know. और एक किसी का ना भी डाउट आया था ईश्वरन को कि दैट लाइक व्हाई डू वी नीड टू यूज मैक्स, कैन वी यूज मैक्स पुलिंग लेयर इंस्टेड ऑफ कॉन्फ 2D लेयर? तो इसका सिंपल आंसर, दोनों का पर्पस अलग है। जो मैक्स पुलिंग लेयर होती है वो डाउन सैम्पलिंग कर रही होती है, वो इंपॉर्टेंट फीचर्स को उठाकर बस नेक्स्ट लेयर को भेज रही होती है। जो हमारी कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है उसमें जो फिल्टर्स होते हैं, जो फिल्टर होता है इकॉर्नल होता है, ये वेट्स की तरह, वेट मैट्रिक्स जो होती है वो अपडेट हो रही होती है। तो जो कॉन्व 2D लेयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट बट उसका पर्पस एकदम डिफरेंट है दैन मैक्स पुलिंग लेयर। तो पुलिंग लेयर में आप उसको डाउन सैंपल कर रहे हो, उसका साइज रिड्यूस कर रहे हो जस्ट बाय टेकिंग आउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स। यहाँ पे आप वेट्स भी जनरेट कर रहे हो बाय मूविंग द कर्नल ऑन टॉप ऑफ द, एंड यहाँ पे मैक्स पुलिंग लेयर में आप चारों में से मैक्स निकाल रहे हो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वेट्स के साथ। तो दिस इज आई थिंक, दोनों का एकदम ऑब्जेक्टिव डिफरेंस डिफरेंट है। तो वहाँ पे वेट्स भी अपडेट हो गया, आप फॉरवर्ड प्रोपगेशन में जाओगे, बैकवर्ड में जाओगे, ये जो 101 आपको ये वैल्यूज दिखनी है, ये सारी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो वैसे एक एग्जांपल की तरह मैंने ऐसे दिखाया कर्नल यहाँ पे। मैक्स पूलिंग बस इनमें से 4-5 में से मैक्सिमम वाला उठा रहा है, दैट्स, वो उसके अंदर नहीं जा रहा, और कर्नल की तरह उसके ऊपर से जा रही है। एंड अभी भी आई थिंक रन हो गया है, तो एक बार इन्फॉर्म कर देना।
जो 75 मैंने उसमें ईपॉक्स यूज करे वो आप कितने भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जस्ट एक 75 नंबर मैंने करा था वहाँ पे, मेरे को अप्रोक्सीमेट था वो एक्सपीरियंस से कि इट विल गो गुड। आप ज़्यादा भी करके देखो, लो भी करके देखो, कहाँ प्लेट्यू कर जाए। आपको एक बार दिखाई देता हूँ। इसमें हम लोग इसको मैं आई कुड हैव स्टॉप की अराउंड 60 के आसपास भी अगर मैं स्टॉप करता तो भी सिमिलर सी एक्यूरेसी मिलती मुझे, बट मैंने 75 तक उसको चलने दिया जस्ट टू शो कि चल रहा है। नंबर्स देयर इज नो पर्टिकुलर फिक्स्ड कि कितने इपॉक्स लेने हैं। और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस का जिसने भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो कि लाइक नंबर ऑफ ईपॉक्स वाला, ये आपको लाइक ट्रायल एंड एरर से ही पता चलता है। अगर आप ट्राई करके देखो डेटा सेट पे कि लाइक कर्व देखो, अगर आपने पहले 20 पे लगाया, उसके बाद भी आपको अगर दिखता है कि हाँ मेरा कर्व ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता, मुझे दिखता है कि हाँ मेरा कर्व ऊपर भी ऊपर को जा रहा है, तो मैं उसको जाने देता थोड़ी देर और। अगर वो मेरे को दिखता कि मतलब स्ट्रेट लाइन के आसपास आ गया, तो मैं उसको स्टॉप कर देता। तो दैट्स जस्ट, आप थोड़ा बड़ा नंबर देके पहले ट्रेन करो पहले बारी में। ये डीप लर्निंग में होता है कि आपको बहुत बार मॉडल आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा, बहुत बार अलग अलग हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी टू गेट टू द बेस्ट ऑफ इट। एंड यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो, अगर आपने 100 के आसपास दे दिए, मैंने आपको कॉल बैक्स समझाया था। कॉल बैक्स क्या होता है पिछले उसमें, कॉल बैक में एक अर्ली स्टॉपिंग करके होता है। तो अगर 100 लगा दूँ तो ये वाला जो अर्ली स्टॉपिंग वाला कॉल बैक होता है, अगर इसने देख लिया कि हाँ वैल लॉस जो है वो मेरा लास्ट फ्यू लेयर्स में सेम चल रहा है, तो वो रोक देगा, अपने आप रोक देगा। आप कॉल बैक लगा दो अर्ली स्टॉपिंग और बड़ा नंबर देके छोड़, बड़ा नंबर 75 100 इस टाइप का नंबर। एंड यहाँ पे रिड्यूस एरर ऑन प्लेटू और इस टाइप के ना कॉल बैक्स, और सेव द बेस्ट मॉडल वाले कॉल बैक भी आते हैं कि उसको फाइल की फॉर्म में सेव हो जाए। देयर इज अ लॉट मोर, तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके केरास की आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आई कंटिन्यू विद रेजनेट, और किसी को डाउट है तो जस्ट टेक्स्ट ईच करें आपको चैट में। रेजनेट मॉडल एक नया मॉडल इन्वेंट हुआ था। तो ये मॉडल क्या है, इसमें ना स्किप कनेक्शन है। जैसे आप यहाँ पे अगर देख लो, तो ये पर्टिकुलर लेयर के बाद बीच में काफ़ी सारे लेयर्स और होंगी, बट ये एक एडिशनल पैरेलल में स्किप कनेक्शन क्रिएट किया जाता है जो आगे जाके कंकैटनेट होता है। अब एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम पे, जिसको कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट। उसमें क्या होता था कि कई इंपॉर्टेंट फीचर्स ना मैक्स पुलिंग और इस टाइप के कॉन्वोल्यूशन वगैरह लगाते हुए छूट जाते थे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक ऐसे एडिशनल हम लोग डायरेक्टली पुल वो एक स्किप कनेक्शन डाल देते हैं बीच में। अब इसको वो कहते हैं रेजिडुअल ब्लॉक कहते हैं, उसके अंदर स्किप कनेक्शन लगता है। तो एक से ज़्यादा कॉन्वोल्यूशन लेयर को स्किप कर देता है। वो बेटर मैपिंग्स जो पीछे रह गई होती हैं उनको लर्न कर पाता है, बेटर तरीके से आगे बढ़ पाता है। तो इसके अगर आप नोटबुक आप अपने हिसाब से रन करो एक बार एंड चेक करो, बस यहाँ पे वो कैट डॉग एंड पैंडा क्लासिफिकेशन है। एंड यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, ये इमेज डेटा जनरेटर, ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अगर आपको कई बार अज्यूम करो, यहाँ पे तो मैंने करा नहीं, बट कई बार अज्यूम करो आपका डेटा सेट छोटा है और आपको उसको लाइक ट्रेन करने के लिए सोचो कि थोड़ा बेटर करने या ज़्यादा चाहिए मुझे, तो कई बार हम रोटेशन और उस टाइप के ना लाइक थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा क्रॉप कर देते हैं इमेजेस को, ताकि फिर वो ज़्यादा डेटा सेट एक तो इंक्रीज होता है उससे, और उससे डेटा पे क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रोटेटेड इमेज और स्ट्रेट इमेज में फीचर्स तो सेम एग्जिस्ट करते हैं, बस उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। तो उससे भी उसको इम्पोर्टेंट फीचर्स निकालने का मौका मिलता है कि टेढ़ी इमेज से दूसरे तरीके से। यहाँ पे तो बस हम उसको रिसाइज कर रहे हैं अभी, मेक श्योर कर रहे हैं कि आरजीबी में है,
कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उसके अंदर वन हॉट इनकोडेड, वन हॉट इनकोडिंग भी इसी के अंदर हो रही है। एंड फिर उसको ट्रेनिंग के लिए वैलिडेशन के लिए इसे अलग बना दिया, इस टाइप से हमने क्रिएट कर दिया इनको। तीन हमारे यहाँ पे डेटा जनरेटर्स लगे। फिल मोड नियरेस्ट का मतलब होता है कि अगर बाय चांस आपकी इमेज के अंदर कुछ मिसिंग पिक्सल्स हैं, कई बार हो जाती है सिचुएशन भी, देखने में लगता है कि इमेज ठीक है बट कुछ बीच में मिसिंग पिक्सल्स होते हैं, तो उसको वैसे फिल करें कि जस्ट साथ वाला जो होगा उसको फिल कर दे, नियरेस्ट वाला, नियरेस्ट उसका नेबर होगा वो सेम वैल्यू पे आ जाए, ताकि हमारे पास नन या एम्प्टी पिक्सल्स ना हो गए। कई बार वो जीरो से भी फिल करते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्या करना है, बट यहाँ पे नियरेस्ट इज यूजुअली द बेस्ट अप्रोच। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्री ट्रेन्ड जो रेजनेट है उसको ऐसे कॉल कर लिया है, अगर आप देखोगे हियर प्री ट्रेन्ड रेजनेट कॉल कर लिया, उसको मैंने लगा दिया एज द फर्स्ट लेयर ऑफ माय मॉडल। उसके बाद ट्रेडिशनल जैसे पिछला वाला मॉडल एग्जैक्ट सेम चला था, conf 2D max pooling dense dropout एंड देन डेंस लेयर से प्रेडिक्शन। उसके जस्ट इसके ऊपर मैंने एक रेजनेट की इनपुट लेयर लगा दी। आप ये देख सकते हो इसका डायग्राम। ये रेजनेट 50 है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेजनेट मॉडल्स। इसका भी मैं आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन भी दिखाऊंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजर कॉल्ड एडम हुई हाँ, आपको लास्ट उसमें देखा था मैंने स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगी थी, यहाँ पे सिर्फ कैटेगोरिकल लगी। दोनों में फर्क ये है, ये वन नॉट इनकोडेड के लिए मैंने वन नॉट इनकोडिंग समझाई थी थोड़ी देर पहले, और वो वाला नॉर्मल अगर मैं 1 2 3 4 5 टाइप लेबल्स दिए थे उसके लिए। 25 ईपॉक्स पे रन करा है एंड मेरी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी आई है दैट्स अबाउट 99 एंड वैलिडेशन अबाउट 90। हल्का सा आई थिंक हल्का सा एकदम ओवरफिट कर रहा है, बट वो आप कॉल बैक्स और उस टाइप की चीज़ें लगाकर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दैट्स अप टू यू। अब आपने इसमें रेजनेट की जगह VGG16 ट्राई करना है, डेंसनेट ट्राई करना है, अलग अलग टाइप के एलिक्सनेट वगैरह ट्राई करने हैं, वो ट्राई करके देखो। इसमें अब एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हाइपर पैरामीटर, ये नोटबुक में इसी वजह से मैंने कमेंट्स नहीं डाले थे और आपको होम असाइनमेंट की तरह दिया गया है कि इसमें आपने एक तो अलग अलग मॉडल्स ट्राई करने हैं इस डेटा सेट पे, डेटा सेट का उसमें लिंक भी डाल रखा है। इस डेटा सेट पे आपने अलग अलग मॉडल्स ट्राई करने हैं अपने हिसाब से, एंड जो मेरी इससे रेजनेट 50 से एक्यूरेसी आई है उसको बीट कर, टेस्टिंग एक्यूरेसी को बीट करने की कोशिश करनी है आपने। आई थिंक आप सबके लिए डुएबल। मैं आपको रेजनेट का एक और आपको दिखाता हूँ, दिस वेबसाइट कॉल्ड टेंसर स्पेस जेएस। इसमें आप अपने मॉडल्स को विजुअलाइज कर सकते हो। फिर रेजनेट की विजुअलाइजेशन आई थिंक आपको थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करेगी कि कैसे वर्क करते हैं मॉडल। तो अगर मैं इसको ऐसे ओपन करूँ तो फर्स्ट इमेज हमारी RGB स्प्लिट हो रखी है, इसमें 3 चैनल्स हैं और 224,224 का साइज है उनका। ये हमारी फर्स्ट कॉन लेयर लगी है यहाँ पे, ये देखो ये इसके अंदर से जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, आप देख रहे हो कॉन फिल्टर से जो उसका फीचर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। आपको दिख रहा है किस टाइप से ये डॉग को बड़े आराम से रिकॉग्नाइज कर ले रहा है। यहाँ पे देखो आप कौन सी इमेजेस से आ रहे हैं इस टाइप के, आपको पता लग सकता है। इसको मैंने हवर करा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये रेड कलर वाला ब्लॉक जो है दैट इज इन्वॉल्व इन स्किप कनेक्शन। मैं रेड वाले पे डाल रहा हूँ, इसका दिख रहा है कि मुझे ये एडिशन ब्लॉक है जो इनपुट डेटा, आपको रेड हल्का सा रेड लाइन दिख रही होगी बीच में, ये इनपुट डेटा ले रहा है हमारा एक ब्लॉक स्किप करने के बाद भी। ये इस टाइप से इसका बहुत लंबा सा बड़ा सा आर्किटेक्चर है। इसका रिसर्च पेपर पढ़ो, आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि रेजनेट 50 का क्या आर्किटेक्चर है, वो कैसे काम करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में 2 स्किप हो रहे हैं एंड फिर आ रहा है, उस टाइप से काम कर रहा है ये। तो अलग अलग उनके स्किप के भी कितने स्किप करने हैं, क्या करना है, वो सब भी आर्किटेक्चर के अंदर डिफाइंड है। यहाँ पे देखो कितने ज्यादा फीचर्स निकल रहे हैं, बस इस टाइप का हमारा आर्किटेक्चर क्रिएट हो रखा है इसमें। यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसे से हमारे शो हो रहे हैं एंड साइज स्मॉलर कंपैरेटिवली, जो लास्ट लेयर तक आते आते हैं, लास्ट हमारी आउटपुट लेयर है, लास्ट लेयर से जस्ट पहले वाला ब्लॉक ऐसा। ठीक है, आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर रेजनेट। आप लोगों का टास्क है एक बार रन करो नोटबुक, फिर उसमें VGG16 या फिर डेंसनेट और इस टाइप के मॉडल्स ट्राई करो, उस पर कॉल बैक्स वगैरह लगा के ट्राई करो कि कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन देखो कि मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है टू बी ऑनेस्ट ये विजुअलाइजेशन।
आप लोग एक बार जब रन करके देख लोगे एंड थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर लो, 2-4 मिनट आपको दे रहा हूँ उसके लिए, देन लेट मी नो एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद इट। जब आप कोप अप कर लोगे तो बता दें, एंड कोई डाउट्स है अनम्यूट करके पूछ लो एंड देन आई। लाइक गाइस, आप लोग रन करके देख रहे हो होपफुली, एंड आप लोग अपना इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि कैसे VGG 60 इयर्स टाइप के अलग अलग एल्गोरिथम्स को टेस्ट किया जा सकता है। एंड आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए हो, मैं यहाँ पे डाला हुआ है सब कुछ। यहाँ पे रिसर्च पेपर्स भी है, रेजनेट का पेपर, यूनेट का पेपर, उनको भी आप रीड करने की कोशिश कर सकते हो। एंड इस पे कोई डिस्कशन करना चाहता है, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशंस, so just contact me on LinkedIn or Twitter or other social media. All right, I can you anyone tell me like if they've run the notebook and tried it out? Just let me know so that I can move forward. Okay, I'll wait for another 2 minutes and then I'll move forward on that. All right, so moving on, I'll move on to the unit architecture next. तो यूनिट अभी आज वैसे तो पढ़ा लाइक थोड़ा एडवांस्ड मॉडल है, बट आज इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज कल के ज्ञान में एक ज्ञान में यूनिट यूज हो रहा है। तो हम लोग को ताकि थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दें, आप लोग के लिए होम टास्क ये भी है कि यूनिट का आर्किटेक्चर थोड़ा सा समझ के आना है ताकि कल का आपको ज्ञान मॉडल और बेटर तरीके से समझ आ जाए। तो यूनिट आर्किटेक्चर बेसिकली दो पार्ट्स में है। तो दिस पार्ट
ये जो जहाँ पे मेरा अभी माउस मूव कर रहा था, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द एनकोडर पार्ट। ये एनकोडर पार्ट कंप्राइजेज ऑफ कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स। कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स जो होती हैं वो उसको समझती हैं, उसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट करती हैं। बट अब फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो गए, अब फीचर्स के बेसिस पे मास्क भी क्रिएट करना यूनिट मॉडल का काम होता है। तो यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज के बाद अब आता है डीकोडर। जो डीकोडर पार्ट होता है वो सारे एक्सट्रैक्टेड फीचर्स को यूज करके हमारी ओरिजिनल इमेज के ऊपर एक मास्क क्रिएट करने में हेल्प करता है। वो डीकोडर पार्ट से हो रहा होता है। यहाँ पे भी अलग अलग लेयर्स लगी होती है, सिविल की कॉन्वोल्यूशनल डीकॉन्वोल्यूशनल लेयर्स होती हैं। इसकी यू शेप ऐसे इसलिए बनाई जाती है कि इसमें बीच में आप देखो स्किप कनेक्शंस भी लगे, ताकि कोई जैसे बोला था मैंने वैनिशिंग ग्रेडियंट वाला इशू ना आ जाए। तो ओरिजिनल वाले से भी आगे भी दिए जा रहे हैं, एंड हर उसमें भी जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एनकोडर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिकोडर में पार्ट है, उनमें फीचर मास्क फीचर वाला जो मैट्रिक्स है वो शेयर किया जा रहा है। एंड यहाँ पे इनका साइज अगर आप देखो, जैसे हमारा ऊपर रिड्यूस हो रहा है टॉप टू बॉटम, अगर आप जाओ तो 208x 208 148 उस टाइप से साइज इज रिड्यूसिंग, एंड फिर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो दैट्स अनदर रीजन फॉर द यू शेप जो क्रिएट हो है, उसका यूनेट अभी नाम पड़ा है। एंड ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था मेडिकल इमेजिंग के लिए, ताकि मेडिकल इमेजेस में से जो इन्फेक्टेड एरिया होता है या जो उस टाइप के एरियाज होते हैं उनको सेगमेंट करके मार्क कर सकें हम लोग। इसका एग्जाम्पल ऐसे है, तो इनपुट इमेज अगर इस मैन की है, उसको हम यूनेट मॉडल के थ्रू पास करेंगे, तो इस टाइप का एक प्रिडिक्टेड मास्क क्रिएट हो जाएगा। इसके बीच में स्किप कनेक्शंस लगे हैं, वो आप देख सकते हो, ये ब्लॉक डायग्राम। बाकी इसका आर्किटेक्चर और डिटेल में समझना है, रिसर्च पेपर का लिंक रिसोर्सेज में। एंड अभी एक नोटबुक है, ये मेरी नोटबुक नहीं है, किसी और की है, बस मैं इसको रन करके आपको इसका आउटपुट दिखाना चाह रहा था। तो इनकी एक्यूरेसी वगैरह अच्छी आ रखी है, 86 के आसपास, ठीक है एक्यूरेसी इनके। आप यहाँ पे देखो, अगर हमने इस डॉग को एज एन इनपुट दिया तो इस टाइप के हमारे को मास्क मिल रहे हैं उसके अंदर से। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो हमारे को इस टाइप से दे रहे हैं इसका इनके कोड में। जो सेगमेंटेशन, इमेज सेगमेंटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो मास्क जनरेट करने में वो हमारे को हेल्प करे, वो सेगमेंट्स में हेल्प कर रहे हैं। आज सुबह एक बच्चे का डाउट था कि इमेज सेगमेंटेशन क्यों, या उसका कहाँ यूज केस आता है, तो यूनिट मॉडल से हम और क्या कर सकते हैं बिसाइड्स मेडिकल इमेजिंग। तो हम इसमें एक चीज़ वो करते हैं, वेदर प्रिडिक्शन। मेरे फ्रेंड ने उस पर काम कर रहा है आजकल वो। तो इट वाज बेसिकली जो क्लाउड्स एंड प्लेन्स इस टाइप की चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स जब स्काई में होते हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए तो वो सेगमेंट एक मास्क क्रिएट कर दे रहा था उसके ऊपर। एंड जब डार्कर क्लाउड्स आ रहे थे, वो आ रहे थे, तो वो प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि किस टाइप की रेनफॉल हो सकती है, यूजिंग उसमें उन्होंने बहुत सारे और फैक्टर्स भी लगाए थे, काफ़ी एडवांस मॉडल था उनका। इस टाइप की चीज़ों में ये यूजफुल होता है बिसाइड्स द मेडिकल डोमेन ऑल्सो। I think that's mostly it for the day. And if you have any questions, feel free to ask. Me and Ishkaran both are on standby. We'll answer.